Hello, students. Good morning, all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself, and you are also preparing well for your exams. Welcome back to our English class. So, students, we are already done with the revision of chapter The Diamond Maker and the Red-Headed League, and we have also completed the worksheet 5 and worksheet 6 in the revision. Right, we haven't done the poem. If I will get the time, I would be doing that. But right now, we are going to start with the revision of our grammar portion from your grammar book, that is Adventures with Grammar and Composition. So, students, I request you to open chapter number 8, that is Active Passive Voice, page number 71. Okay, so let's see, let's just revise it and we will carry out the exercises also which are given over here. I hope that you remember what are active and passive voices, right? Active voice means the sentence in which the action, doer of the action is in the beginning of the sentence. That means it is in the place of subject, right? That is active voice. And when we are talking about passive voice, the receiver of the action would be in the position of subject. So it depends on the receiver and the doer of the action, और उसके बेसिस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो वर्ब है वो कौन से वॉइस में है. Right, the voice of the sentence tells us whether the subject in the sentence is performing the action or receiving the action. Right, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो परफॉर्मर या फिर डूअर ऑफ द एक्शन है तो उस वर्ब को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस. And when the subject of the sentence is receiver, then it is said to be in the passive voice. Okay, so you need to remember. We also studied that where do we use passive voice, right? Normally हम जो sentences बोलते हैं regular use में, whatever we speak in general, we always talk in active voice. जहाँ पर भी possible होता है हम active voice ही use करते हैं. But in some conditions we do use passive voice. So let's see when do we use passive voice. The first is when the doer of the action is obvious. That means कि हमको मालूम है कि ये एक्शन कौन कर रहा है, तो उस टाइम पर हमें डूअर ऑफ द एक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखेंगे. जैसे कि इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ इंग्लिश इज़ स्पोकन, राइट. कौन बोल रहा है उसको? हु इज़ स्पीकिंग दैट लैंग्वेज? ऑब्वियसली इट इज़ स्पोकन बाय पीपल, राइट. सो वो हमको मालूम है कि यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? पीपल है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड टू ऐड दिस थिंग. सो वी कैन राइट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस. नाउ वी कैन राइट पैसिव वॉइस, वी कैन यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन वी डोंट नो द डूअर. मतलब जब हमें पता ही नहीं है कि एक्शन किसने की है, हु कैरिड आउट दैट एक्शन, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ पैसिव वॉइस. जैसे कि the cup was broken. Here we don't know who broke the cup, right? किसी ने तो तोड़ा है, लेकिन जब कप फूटा होगा at that moment nobody was present over there. तो किसी को मालूम नहीं है कि वो कप किसने तोड़ा है. सो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली है. जैसे कि by somebody, we don't know, right? So we can use passive voice over there. Then when the person or the thing acted upon is more important than the doer, मतलब जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डूअर ऑफ द एक्शन से, तब हम यूज़ कर सकते हैं पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, लॉज हैव बीन पास्ड इन नेवाडा, फ्लोरिडा एंड कैलिफोर्निया अलाउिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन द रोड. लॉज हैव बीन पास्ड. Now, who passed that law? That is not important over here, but the important thing is laws pass हुए है. So that is again a passive voice. Then we can use passive voice when we want to be walk about who is responsible. मतलब जब हमको clarity नहीं देनी है किसी को, ठीक है, हमें मालूम है लेकिन हमें ऐसा pretend करना है कि हमको नहीं पता कि वो एक्शन किसने की है या फिर who is responsible for that action. At that time also we can use passive voice. And in formal speeches and reports also we use passive voice. Okay. Now when you form
पैसिव वॉइस, यू नीड टू रिमेंबर सम थिंग्स, जैसे कि सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स जिसके पीछे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, राइट. द वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, दोज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है द वर्ब्स विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इट, मतलब जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि सेंटेंस विथ इनट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट हैव पैसिव वॉइस. सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर ही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल द बेबी क्राइड, हियर वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. पैसिव वॉइस इज पॉसिबल ओनली फॉर वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट्स. मैंने आपको बताया अभी पहले ही कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे तो ही पैसिव वॉइस में चेंज होगा. और अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इफ द सेंटेंस हैव टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, not subject object. If the sentence is having two objects, then one of the two can be made the subject. मतलब दोनों में से कोई भी एक रिसीवर ऑफ द एक्शन को आप आगे लेके पैसिव वॉइस बना सकते हो. जैसे कि we gave a birthday gift to Manu. Your students, if you ask the question what he got, what we gave, birthday gift. और किसको दिया हमने? मनु को. सो नॉर्मली हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा इनएनिमेट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो पर्सन होगा. ठीक है. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं तो हम जो पर्सन है मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आगे लाते हैं. जैसे कि मनु वॉज गिवन अ बर्थडे गिफ्ट बाय अस, और अ बर्थडे गिफ्ट वॉज गिवन टू मनु बाय अस. एनीवे इज़ फाइन. आप इसके अंदर मनु पहले लिया है और इसमें बर्थडे गिफ्ट पहले लिया है. ठीक है. Now let's see the most important part which you need to remember while carrying out active passive voice, right? जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू सी द टेंस ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमको चेंजेस करने होते हैं. टेंस चेंज नहीं होता है पूरा, लेकिन जो हमारा वर्ब होता है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है. सो लेट्स सी दैट नाउ. ओके, so let's see the first one, that is simple present tense. Simple present tense, Celine draws beautiful picture. So here the verb is draws, right? And when you change it to passive voice, we are going to add be verb and then verb past participle. So यहाँ पे हमारा be verb present tense है तो क्या हो सकता है, is, am और are. ठीक है. इन तीनों में से हम कोई भी एक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ठीक है. हमारा जो रिसीवर अभी आगे आने वाला है उसके बेसिस पर हमें इज एम आर यूज़ करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब जो रिसीवर है अगर वो सिंगुलर है तो हम इज़ यूज़ करेंगे, अगर आई है तो हम एम यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे. ठीक है. सो इन द सेम वे ब्यूटिफुल पिक्चर्स आर ड्रॉन बाय सलीन. नाउ इफ़ यू सी ब्यूटिफुल पिक्चर्स, राइट, वो प्लूरल है, इसीलिए हमने उसके साथ बी वाला जो वर्ब है वो क्या यूज़ किया है, आर. और ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल होता है ड्रॉन. ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन. ठीक है. तो वो हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया हुआ है. नाउ लेट्स सी सिंपल पास्ट. अनिल मेड अ फ्रेम. Here the verb made is in past tense, है ना. तो उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपका ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है. नाउ व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस द सेम रूल हैज़ टू बी अप्लाइड, जिसमें हम बी वाला वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ जो हमारा मेन वर्ब होगा उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है. ठीक है. सो द आंसर वुड बी अ फ्रेम वॉज मेड बाय अनिल. अभी पास्ट टेंस में बी वर्ब कौन सा होता है, वॉज एंड वर. ठीक है. वॉज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और वर प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. सो रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो एक्शन
अभी हाल में जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी कंटिन्यू हो रही है। तो वो हम दिखाने के लिए हमारा जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है। सो नॉर्मली जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें आपके पास आपका हेल्पिंग वर्ब होगा जो बी वर्ब है, ठीक है, और आपका जो मेन वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। तो आपको पता चलेगा इसके बेसिस पर कि आपका जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, इसीलिए ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। और बी वर्ब के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है। नाउ मान लो अगर आपका बी वाला वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रहा है वो इज एम आर है, ठीक है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम बी वर्ब के अंदर क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वो तो हमारा वर्ब आईएनजी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वॉज वर है और वर्ब आईएनजी है, राइट, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है एंड दैट टू एक्टिव वॉइस। नाउ व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज बी वर्ब। सबसे पहले तो then we are going to add one word that is being, and the last thing would be verb past participle. Okay, now if it is present continuous tense then we are going to use is, am or are plus being plus verb past participle. So this is your present continuous tense का passive voice. In the same way, if you see the sentence, Sunil and Anil are painting the big canvas. So the big canvas is the object in our sentence, right? तो उसको हमने आगे लिया तो क्या लिखा, the big canvas is being painted by Sunil and Anil. now यहाँ पे is क्यों यूज़ किया है हमने, क्योंकि हमारा जो कैनवस है वो सिंगुलर है ना, और पेंट का वर्ब पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पेंटेड। ओके, नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी आर मेकिंग इट इनटू पैसिव वॉइस हमारा बी वाला वर्ब कौन सा होगा, वॉज या तो वर, एंड वी आर गोइंग टू ऐड बीइंग and then verb past participle. Okay, so this is the passive voice for past continuous tense. They were whitewashing the wall yesterday. The wall was being whitewashed by them. So यहाँ पे the wall जो है वो singular है, इसीलिए उसके साथ हमने be वाला verb क्या यूज़ किया है, was, being and whitewashed। ये जो whitewashing है उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा वाइट वॉश्ड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। Okay, now let's see present perfect tense. Present perfect, when it is an active voice, we have has or have plus verb past participle. This is our active voice formation for present perfect tense. ठीक है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। सो योर स्टूडेंट हैज़ एंड हैव डिपेंड्स ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर वो सिंगुलर है तो आप हैज़ यूज़ करोगे और अगर प्लूरल है तो हैव यूज़ करोगे। और एडिशन में एक वर्ड आएगा जो है बीन and then verb past participle. Okay, so if you see the sentence they have invited you, तो यहाँ पे you जो है वो है हमारा रिसीवर, तो हमने उसको पहले ले लिया। You have been invited, now they haven't returned by them। अगर आपको लिखना है तो आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, you have been invited by them। When we are talking about past perfect tense उसके अंदर हम had यूज़ करते हैं और verb का past participle होता है for active voice। okay, and when we change it into passive voice we are going to write had plus been
प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यहाँ पे आपको हैड ही यूज़ करना है वेदर योर सब्जेक्ट वेदर योर रिसीवर विच इज़ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी है उसके लिए हमें हैड ही यूज़ करना है। ठीक है, सी द एग्जाम्पल, आई हैड ईटन ऑल द एप्पल्स। All the apples is the object of the sentence and I is the subject. When we change it, we are going to write all the apples had been eaten by me. Right? Now simple future. It's very easy. Simple future is we are going to use will plus verb का पहला वाला form. वर्ब का पहला वाला फॉर्म मतलब बेस फॉर्म जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं वो। एंड दिस इज़ योर एक्टिव वॉइस। ओके, दे विल डेकोरेट द क्ले पॉट्स। योर आवर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द क्ले पॉट्स, राइट? व्हेन यू चेंज इट you would be writing the clay pots will be decorated by them. That means हमारा passive voice का जो formation होगा वो होगा will be plus verb past participle. This is our passive voice. Okay, and when we are talking about modals, modals are also the auxiliary verbs just like is, am, are, was, were, right? जो बी वाले वर्ब्स होते हैं वैसे ही हम लोग मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो वो होता है कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, ऑथ, राइट? ये सारे जो वर्ड्स हैं वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। एंड व्हेन वी हैव मॉडल वर्ब्स इन द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आई कैन डू इट, सो व्हेन यू चेंज इट, it can be done by me. So here normally what we are going to do, we are just going to follow the rule which we have for simple future. Modal verb लिखना है, उसके बाद हम एडिशन करेंगे be का and then our verb past participle. ओके, जो भी मॉडल है, कैन की जगह पर मे है तो मे लिखेंगे, माइट है तो माइट लिखेंगे, है ना? ही मे ड्राइव द कार मे बी ड्रिवन बाय हिम। जो भी मॉडल है उसके साथ आपको बी का एडिशन करना है और आपका जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। सो इफ़ यू नोटिस ओवर हियर स्टूडेंट्स कि हम जब भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एट दैट टाइम हमारा जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आता है। ठीक है, और उसके साथ बी वर्ब का एडिशन होता है ना? एंड इफ इट इज़ कंटिन्यूअस टेंस वी आर गोइंग टू ऐड द वर्ब बीइंग, BEING. इफ इट इज़ परफेक्ट टेंस वी आर गोइंग टू ऐड द वर्ड बीन, BEEN. और अगर फ्यूचर टेंस है या मॉडल्स है तो हमें बी का एडिशन करना है, सिर्फ बी, विल बी, कैन बी, और उसके पीछे जो हमारा वर्ब रहेगा, मेन वर्ब, वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको टेंसेस के जो रूल्स है एक्टिव पैसिव के रिलेटेड वो अच्छे से समझ में आ गए हैं, राइट? और ये डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रेजेंट पैसिव वॉइस है या पास्ट पैसिव वॉइस है। सो हाउ विल यू मेक इट आउट? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारा जो बी वाला वर्ब होता है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड्स आर मेड विथ चार्ट पेपर, यहाँ पे यूज़ हुआ है आर, दैट मीन्स इट इज़ सिंपल प्रेजेंट पैसिव। एंड दीज पिक्चर्स वर पेंटेड बाय दोज चिल्ड्रन, वर पेंटेड। सो वर क्या रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट टेंस, है ना? तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा है सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस में। ओके, इन द सेम वे अगर परफेक्ट पैसिव है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज़, हैव या हैड के बेसिस पर। अगर आपका सेंटेंस है द डिश हैज़ बीन मेड बाय माई ब्रदर, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैज़ बीन मेड, सो यहाँ हैज़ क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर सेंटेंस में हैड है, जैसे कि ऑल द एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय मी, सो हियर द वर्ड हैड represents past perfect. Okay,
Okay, so now let's see the continuous passive voice. In continuous passive voice also we are going to look for the helping verb, क्योंकि बाकी का फॉर्मेशन सेम रहता है being and past participle. The only difference is that of be verb. जैसे कि a function is being organized to celebrate Women's Day and a function was being organized to celebrate Women's Day. So your student is और was, ये दो जो वर्ब है हमारे हेल्पिंग वर्ब, उसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर. I am going to share you some sentences which you need to carry out the exercise by yourself for practice. Okay, and before moving ahead with that, I am just going to share you the paper pattern for your term 2 syllabus. So let's just go through it. Okay, so let's see the paper pattern of English for your term exam. Your marks paper would be of 80 marks and it would be divided into 4 sections. There is section A, B, C and D. The first section is reading portion and it would be having two things, that is unseen passage and unseen poem. That means it won't be from your course book, both the things. And after the passage you might be having some questions which you need to answer, and in the same way for unseen poem also you need to answer the questions given over there. Then we have section B, which is writing portion, and in that we are going to have two things, that is diary entry and story writing. So we have already done diary entry, students, right? We have already done that topic and you have also done it in the SEA. And the second thing which we are going to have is story writing. Now story writing, students, I hope that you have already learned in the previous classes, so it won't be a difficult thing. And in story writing you might be given the outlines, and on the basis of those outlines you have to prepare a story and give a suitable title to it and also the moral of the story. Okay, then the third section would be related to the grammar. And now the grammar over here would be taken from your 3 books, that is course book, then workbook and your grammar book, that is adventures with grammar and composition. और उसमें से आपको 2 ही चैप्टर्स आने वाले हैं, वो है 8 and 30. बाकी का ग्रामर जो है वो आपकी कोर्स बुक और वर्कशीट जो है उसमें से आएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ सेक्शन D, लिटरेचर पोर्शन. उसमें आपकी एक्सरसाइजेज होगी रीडिंग 1 to वोकेबलरी एंड पोएम अप्रिशिएशन, जो पोएम के बाद आता है, राइट, कोर्स बुक के अंदर. वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी एंड द क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू मीनिंग्स, MCQs, आंसर इन शॉर्ट एंड आंसर इन डिटेल, एंड ऑल्सो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आप लोगों ने हु सेड टू हुम पढ़ा होगा पहले, राइट. वैसे ही ये एक्सट्रैक्ट आता है, मतलब आपको आपके जो चैप्टर्स है या पोएम है उसमें से 2-3 लाइन दी जाएगी एंड देन यू हैव टू आंसर कि हु सेड दिस लाइन टू हुम एंड व्हेन डिड ही से और व्हाई डिड ही से दैट लाइन. एंड यू माइट ऑल्सो बी आस्क्ड कि ये लाइन कौन से चैप्टर से ली गई है या फिर किसने लिखी है वो स्टोरी, हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट स्टोरी और हु इज़ द पोएट ऑफ दैट पोएम, राइट. सो वैसे क्वेश्चंस आपको वो एक्सट्रैक्ट के रिलेटेड आएंगे, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विथ द पेपर पैटर्न, राइट, ऑफ इंग्लिश. नाउ आई वुड बी शेयरिंग यू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव एंड यू हैव टू डू इट. So let's see the exercise over here. Are the sentences active or passive? Mary makes her bed every morning. So here, students, you need to find out whether the receiver or the doer of the action is in the place of subject. Here, making the bed, that action is carried out by Mary. So this is our active voice. Charlie is writing a letter. Who is writing the letter? Charlie. So it is again an active voice. The letter is being returned by Charlie. Is being returned. Here we have is,
that is be verb and also being, right? और क्या लिखा जा किसने लिखा है लेटर? चार्ली ने, which is not in the place of subject, right? So this is our passive voice. The whole cake was eaten by my brother. Eaten, eat करना, right? खा जाना. Who did that action? Brother, which is at the last. So this is our passive voice. My mom is going to bake a delicious cake. Is going to bake. Who is going to bake? My mom, which is in the place of subject. So it is an active voice. The ball was chased by the dog. Now chasing. Who was chasing the ball? The dog. It's in the place of object. That's why it's a passive voice. I washed my car last week. Washed. Wash करना. किसने wash किया? I washed it. So it's an active voice. I sent the letters yesterday. So here students, sent is the verb. और किसने send किया letters? I, which is in the place of subject. So it is active voice. And the last one, the money was stolen. Here the verb is stolen. Right? Who stole the money? वो हमको मालूम नहीं है ना? We don't know over here कि who is the doer of the action, and it is not mentioned over here. That means this is our passive voice. Okay. Now let's see second exercise. Here we need to make the passive sentences into active voice. The dinner is being made by him. Now here students, by seeing the verb you need to find out कि वो कौन सा tense है. Is being made. हम being किसके अंदर यूज़ करते हैं? Continuous tense में. और उसके साथ जो हमारा बी वर्ब है वो क्या है? इज़ है, राइट? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ व्हेन यू चेंज इट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो भी चेंज करो. जैसे कि यहाँ पे डिनर क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट, और हिम क्या है? सब्जेक्ट. सो तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ही इज़ मेकिंग. कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब हमारा जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ही इज मेकिंग द डिनर. ओके. नाउ लेट्स सी सेकेंड वन. द लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय चार्ली. Here students, if you see the verb, it has and been. ठीक है ना? तभी बीन हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं? परफेक्ट टेंस में. और हैज़ किसके साथ आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ. सो ये हमारा सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस, व्हाट वुड बी द फॉर्मेशन? हैज़ या हैव और उसके साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल. तो हम जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर डूअर ऑफ द एक्शन है वो पहले लिखते हैं. चार्ली has returned the letter. Right? Let's see the third one. My story will be read by my teacher. Your students will be read. It indicates the future tense. Right? तो future tense में हम क्या लिखने वाले हैं? Active voice में will. और हमारा जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा? पहले वाले, मतलब V1 के फॉर्म में. सो लेट्स जस्ट प्लेस आवर सब्जेक्ट फर्स्ट. माई टीचर विल रीड माई स्टोरी. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. The wedding invitations have been sent out by us. Here हमारा verb है have been sent. been यूज़ होता है perfect में और have यूज़ होता है present perfect में. मतलब ये जो हमारा sentence है वो कौन से form में है? कौन से tense में है? present perfect tense में है. When you write the answer, ये जो us है वो हो जाएगा we. I'm just writing it over here, okay? We have sent the wedding invitations.
हमने हैव यूज़ किया है क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और ये तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा, है ना। एंड लास्ट वन, द कार इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय सैली। योर हमारा वर्ब क्या है, इज़ बीइंग क्लीन्ड। और बीइंग कब यूज़ करते हैं हम लोग, वी यूज़ इट इन कंटिन्यूअस टेंस। एंड अलॉन्ग विद बीइंग वी हैव यूज्ड इज़, जो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है. So this is our present continuous tense. When we are going to change it, our answer would be Sally is cleaning the car. Okay. So students, I hope that आपको ये exercise समझ में आ गई. It's just for the practice. You don't have to copy it down in your notebook. Okay. I'm going to share you one more exercise which you can do it by yourself for practice.